بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آگاہ کریں گے کہ مسجد اقصی کی شہادت کا ہیکل سلیمانی سے کیا تعلق ہے، اور سب سے اہم راز سے بھی پردہ اٹھائیں گے کہ یہود سرخ بچیا کیوں تلاش کر رہے ہیں۔ کیا ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا آغاز سرخ بچیا سے ہوگا؟ اس ویڈیو میں مزید ہیکل سلیمانی کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ یہ بھی بتایا جائے گا کہ بیت المقدس کی حرمت کیا ہے۔ مزید یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہودی بیت المقدس پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، یہ ماجرا آخر ہے کیا؟ مشرقی وسطی میں دونوں قوتیں فلسطین اور اسرائیل جو لڑ رہے ہیں، اس کی وجہ آخر ہے کیا؟ فلسطین اور اسرائیل کے موجودہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا موجودہ حالات قیامت کی نشانی کا پیش خیمہ تو نہیں؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں موجودہ حالات سے بھی آگاہ کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس حوالے سے حدیث نبویہ میں کیا روایات موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ جنگ ایک مسجد کی ہے اور اس کا تمام تر تعلق ہیکل سلیمانی سے ہے۔ یہ ہیکل سلیمانی ہے کیا؟ یہ مسجد یہودیوں کی ہے، عیسائیوں کی ہے یا مسلمانوں کی؟ بیت المقدس پہاڑوں پر آباد ہے اور ان میں سے ایک پہاڑ کا نام کوہ صہیون ہے، جس پر مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ واقع ہے۔ کوہ صہیون کے نام سے یہودیت کی عالمی تحریک صہیونیت قائم کی گئی۔ مسجد اقصی یعنی یروشلم سے لوگ آہستہ آہستہ آشنا ہو رہے ہیں۔ موجودہ دنیا کا یروشلم کو جاننا لازمی ہے، کیونکہ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے لیے یکساں مقدس ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ معبد ہیکل سلیمانی یہاں ہے، جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ رہا، اور یہی ان کے مسیحا کی آمد کی جگہ ہے، جس کے بعد ان کے سنہری دور کا آغاز ہوگا اور یہیں سے بیٹھ کر دنیا پہ وہ حکومت کریں گے۔ عیسائیوں کا عقیدہ بالکل اس کے برعکس ہے، کیونکہ یہی شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے، یہی ان کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے اور اسی مسجد میں قیام بھی کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ بھی ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو یروشلم ہی وہ جگہ ہے جہاں وہ عیسائیت کے تمام عقائد کی تصدیق کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے معتبر اس لیے ہے کہ یہ اسلام کی تیسری اور روح ارض پر بننے والی دوسری مسجد ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ تبدیلی قبلہ سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کر کے پیغام دیا کہ جس خدا نے موسیٰ کو بھیجا، اسی خدا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا نبی بنا کر بھیجا، اور قرآن کو نازل کرنے والا وہی خدا ہے جس نے تورات بھیجی۔ پیارے دوستو، تینوں مذاہب دین ابراہیمی ہونے کے باوجود شدید اختلافات بھی رکھتے ہیں۔ محترم دوستو، بیت المقدس کی تاریخ کوئی 5000 سال پرانی ہے، اور یہ روح زمین پر دوسری جبکہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی یہ تیسری مسجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تینوں مسجدوں کے ثواب کی نیت سے کسی اور مسجد کی طرف رخت سفر نہ کرو۔ پہلی مسجد مسجد الحرام، دوسری مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصی ہے۔ محترم سامعین، یروشلم کا قرآن میں ذکر تو نہیں، لیکن مکہ اور مدینہ کے بعد یروشلم واحد شہر ہے جہاں کسی اللہ کے نبی کی تعمیر کردہ مسجد موجود ہے۔ یروشلم دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ پہلی بار حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں 16 مرتبہ آیا، جنہوں نے بنی اسرائیل پر 40 سال حکومت کی۔ ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے اور قرآن پاک میں ان کا ذکر 17 بار آیا۔ انہوں نے ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا،
जिसकी तामीर को तकरीबन 7 साल लगे। अंजील में हैकल सुलेमान का जिक्र तकरीबन 632 बार आया। इसकी मगरबी दीवार को दीवार गिरिया भी कहा जाता है और ये यहूदियों के लिए दुनिया का मुकद्दस तरीन मुकाम है। यरूशलेम पर तकरीबन 52 बार हमले हुए और 44 बार मुख्तलिफ कौमों का कब्जा हुआ और कम से कम 2 बार ये मुकम्मल तबाह हुआ। यहाँ 64% यहूदी, 32% मुसलमान और सिर्फ 2% ईसाई रहते हैं, जबकि यहूदियों के लिए ये 3500 सालों, ईसाइयों के लिए 2000 सालों और मुसलमानों के लिए 1400 सालों से मुकद्दस है। खाना काबा की तामीर के 40 साल बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी की तामीर करवाई। इनके बाद बनी इसराइल 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। शुमाली हिस्से में मुसलमान और जनूबी हिस्से में यहूद आबाद हो गए। फिर बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने यहूदी सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी और हैकल सुलेमानी को मुकम्मल तौर पर तबाह किया और ताबूत सकीना ऐसा गायब हुआ कि आज तक नहीं मिल सका। 70 साल बाद इराक के बादशाह ने यहूदियों को यहाँ दोबारा आने की इजाज़त दी और उन्होंने दोबारा यहाँ आकर हैकल सुलेमानी की तामीर की। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम और हज़रत हाजरा की पहली औलाद में से हैं, जिनको जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मक्का मुकरमा की सरजमीन पर छोड़ आए थे और वहीं उन्होंने बैतुल्लाह की दोबारा तामीर की। हज़रत इसहाक, हज़रत इब्राहीम और हज़रत सारा अलैहिस्सलामुल्लाह अलैहा के साहबजादे थे और तब पैदा हुए जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी और आप हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से 15 साल छोटे थे और वहीं आपने बैतुल मुक़द्दस की तामीर नौ की। प्यारे दोस्तों, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद मुसलमान और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद यहूद कहलाई और यही मस्जिद के इस इलाके में रहने लगे। इस तरह यहूदियों ने इस इलाके पर पहली बार कब्जा किया। फिर इसके मुख्तलिफ अदवार और मुख्तलिफ औकात में इस पर कभी मुसलमान, कभी ईसाई और कभी यहूदी हुकूमत करते रहे। इन सब बातों से बात तो वाज़ेह हो गई कि बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए किस कदर मोतबर और मुक़द्दस है। प्यारे दोस्तों, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है? क्या ये क़यामत की निशानी तो नहीं? सामईन, क़यामत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। लुग़त में इसके माना खड़ा होना या मुर्दों को ज़िंदगी की तरफ वापस लाना है। इंसान आज भी इन सवालों का जवाब ढूंढ रहा है कि ये कब आएगी। तो अल्लाह ताला ने सूरत अराफ में फरमाया कि ऐ नबी, लोग तुझसे पूछते हैं कि क़यामत का वक़्त कब है, तो आप कह दें कि इसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है और वो इसको मुकर्ररा वक़्त पर ही ज़ाहिर करेगा और वो आसमानों और ज़मीनों पर सबसे भारी चीज़ है और तुम पर अचानक ही आ जाएगी। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि मस्जिद अक्सा का क़यामत की निशानियों से क्या ताल्लुक़ है। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि क़यामत का इतलाक़ 2 तरह के वाक़यात पर होता है, एक क़यामत सुगरा और दूसरी क़यामत कुबरा। क़यामत सुगरा यानी छोटी क़यामत, जब इंसान दम तोड़ता है तो उसके फरने के फ़ौरन बाद क़यामत शुरू हो जाती है, इसके लिए वही क़यामत होती है। और रही बात दूसरी क़यामत कुबरा यानी बड़ी क़यामत, तो इस वीडियो में नेक्स्ट आपको बताएंगे कि क़यामत कुबरा क्या है और मस्जिद अक्सा से इसका क्या ताल्लुक़ है। दोस्तों, क़यामत की निशानियां 2 तरह से नज़र आती हैं। एक तो कुरान पाक में जो क़यामत के बिल्कुल करीब नज़र आएंगी, दूसरा हदीस में जिसमें करीब और बाइद हर दौर की निशानियां मौजूद हैं, यानी हज का मौकूफ़ होना, मस्जिद अक्सा को शहीद होना, दज्जाल का आना, इमाम महदी सरकार का ज़हूर, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल, दालतुल अर्ज़ का रूनमा होना। और इस वीडियो में सबसे ख़ास और अहम राह से भी हम पर्दा उठाएंगे कि यहूद सुर्ख बछिया क्यों तलाश कर रहे हैं और इसके पीछे राज क्या है।
दोस्तों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की निशानियां बताईं, जिसमें काबतुल्लाह का तवाफ रोका जाना भी शामिल है। जैसा कि सबको मालूम है कि 2020 में कोरोना वायरस के दरमियान में खाना काबा का तवाफ रोक दिया गया था, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये कुर्ब क़यामत की निशानी है, जो कि बिल्कुल भी हरगज़ ठीक नहीं था, क्योंकि ये दौरान कोरोना आर्जी तौर पर बंद था, जबकि कुर्ब क़यामत की निशानी में से तवाफ़ खाना काबा को ज़बरदस्ती रुकवाना शामिल है। रवायत ये भी है कि इसके बाद मस्जिद अक्सा को शहीद करने का वाक़या रूनुमा होगा। उलमा इकराम ये भी कहते हैं कि वाज़े नहीं कि पहले हज मौकूफ़ होगा या बैतुल मुक़द्दस को शहीद किया जाएगा। मोहतरम सामीन, 1918 में ये इलाका बरतानवी राज के ज़ेर तसल्लुत आया, तो उन्होंने बड़ी तादाद में यहूदियों को ला कर यहाँ आबाद करना शुरू किया, और फिर 30 साल बाद 1948 को यहाँ के यहूदी सहूनी ताकतों ने इस जगह को मुल्क इसराइल का ऐलान कर दिया, और फिर बाद में उन्होंने मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी और इस ज़मीन पर मौजूद मुसलमानों का खात्मा शुरू कर दिया। अलबत्ता मौजूदा सूरत हाल को देखें तो वहाँ यहूदियों का कब्ज़ा है, और वो सरेआम खुले में कह रहे हैं कि बैतुल मुक़द्दस को गिराने के लिए सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, और इसकी बुनियादों से ताबूत सकीना को तलाश करके बैतुल मुक़द्दस को गिरा कर थर्ड टेम्पल की तामीर करेंगे, और फिर इंग्लैंड के चर्च में मौजूद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त लाकर यहाँ रखेंगे। इसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा। सामीन, दज्जाल यहूदी नस्ल होगा, उसका छोटा कद होगा, घुंघराले बाल होंगे, सुर्ख गंधमी रंग होगा, और वो एक आंख से काना होगा। इसकी फॉलोअर ज़्यादा औरतें होंगी, और 70,000 यहूदी अस्फहान इसके साथ होंगे। वो बड़ी तेज़ी से सफ़र करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका एक दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, और तीसरा 1 हफ्ते के बराबर होगा। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने तवील दिन तो हम नमाजें कैसे अदा करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक़्त का अंदाज़ा लगा के आम दिनों के वक़्त के मुताबिक नमाज अदा करोगे। फिर उसी थर्ड टेम्पल में दज्जाल की ताजपोशी की जाएगी। इसके बाद दज्जाल ग्रेटर इसराइल की बुनियाद रखेगा, जिसका नक्शा यहूदियों ने पहले ही तैयार कर रखा है। सऊदी अरब, इराक, शाम, लबनान और मिस्र के बेशतर इलाके इसका हिस्सा होंगे। सऊदी अरब के 2 मुक़द्दस शहर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा ग्रेटर इसराइल के नक्शे में नहीं हैं। दज्जाल मक्का और मदीना मुनव्वरा में दाखिल नहीं हो सकेगा। मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने की कोशिश करेगा, और मदीना के 7 दरवाज़ों पर फरिश्ते होंगे जो इसको दाखिल नहीं होने देंगे। फिर ज़ल्ज़ले आएंगे और कमज़ोर ईमान वाले डर के बाहर निकलेंगे, और दज्जाल इनको पकड़ लेगा। फाइनली इमाम महदी सरकार का ज़हूर होगा। महदी अलैहिस्सलाम इससे जंग करने के लिए दमिश्क की तरफ आएंगे। जंग की तैयारी होगी, नमाज का वक़्त हो रहा होगा। इमाम महदी सरकार मुनासिब वक़्त का इंतज़ार कर रहे होंगे। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दमिश्क के मगरबी किनारे की मस्जिद के मीनार पर नज़ूल होगा। 2 फरिश्ते होंगे, आपने उनके कंधों पर हाथ रखा होगा। ताज़ा किए हुए वुज़ू का पानी इनके कोनियों से टपक रहा होगा, और आप अलैहिस्सलाम आकर अमामत करवाएंगे। हदीस में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर दज्जाल ऐसे भागेगा जैसे नमक को पानी में डाला जाए और वो पिघल जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसका पीछा करते हुए लूत के मकाम पर आएंगे। ये फ़लस्तीन के अंदर यरूशलेम में बैतुल मुक़द्दस के करीब बाब लूद है। इस बाब लूद के मुकाम पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और इसकी लाश उधर कुएं में फेंक देंगे। मुकाम लूद पर मस्जिद के 2 हिस्से हैं, एक हिस्से में मस्जिद और दूसरे हिस्से में चर्च है। इस चर्च में सेंट जॉर्ज की कब्र है। ईसाईयत में सेंट जॉर्ज और मुसलमानों में उनका नाम
हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया और यहाँ आए तो उन्होंने मुसलमान उलमा के मुतफ़िक़ा राय से इसको दो हिस्सों में ही रहने दिया। एक हिस्से को मस्जिद बना दिया और दूसरे हिस्से में चर्च ही रहने दी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के कत्ल करने की जगह भी बताई। फिर फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लश्कर में जो लोग होंगे मैं उनके नाम जानता हूँ, उनके बाप दादा के नाम जानता हूँ, मैं उनके घोड़ों के नाम तक जानता हूँ। फिर इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ेंगे, खंजीरों को कत्ल करेंगे और हर तरफ खुशहाली होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरफ इस्लाम ही इस्लाम होगा। फिर सूरज मगरब से तुलू होगा, जिसके बाद तौबा का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसी दौरान सऊदी अरब में सुफा नामी पहाड़ी फटने से एक अजीबुल गरीब जानवर बाहर निकलेगा, जिसको कुरान करीम में दालतुल अर्ज कहा गया है। इसके पास मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। ये कुराए अर्ज पर बसने वाले लोगों के माथे पर फेरेगा, जिससे मुसलमानों के चेहरे रोशन हो जाएंगे और काफिरों के चेहरे स्याह हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई किस जानब लेकर जा रही है। खातमुन नबीयीन के फरमान की रोशनी में दौरे क़यामत का आगाज़ हो चुका। इस दौर में जंगो जदल और मुख्तलिफ ताकतों के दरमियान खींचातानी का तसलसल रहेगा। 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बाखबर कर दिया था, हम ही अनजान बने बैठे हैं, बाकी तो सब अपनी तैयारी करके बैठे हैं और अपनी अपनी जगह पर खुश हैं। ईसाइयों का कहना है कि ईसा अलैहिस्सलाम आकर ईसाइयत की तजदीद करेंगे और यहूदियों का अकीदा है कि उनकी बालादस्ती होगी। कुब्तुल सुखरा और मस्जिद अक्सा के नीचे सुरंगें खोदी जा चुकी हैं। इसराइल की हुकूमत का कहना है इन सुरंगों का मकसद हैकल सुलेमानी की बाकियात को तलाश करना है। यहूदी हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए सब कुछ इकट्ठा करके बैठे हैं और वह अपने अकायद के मुताबिक तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी की तामीर करना चाहते हैं और अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं, जो सुरख बदशिया की शक्ल में होगा। दोस्तों, हैकल सुलेमानी की तामीर ठीक इसी जगह पर की जाएगी जहाँ पे मस्जिद अक्सा है। और आज के मगरब के लोग जो 2 स्टेट सोल्यूशन, 2 रियासती हल की बात करते हैं, उसमें से पहली शर्त ही ये है कि बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा का इलाका इसराइल के पास होगा, जिसे वो शहीद करके थर्ड टेम्पल की तामीर करना चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, सहूनी दुनिया बहुत खुश है। इनका ख्याल है कि वो वक़्त करीब आन पहुंचा कि सारी दुनिया पर इनकी हुकूमत होगी। इनकी खुशियों की वजह यह है कि वो ऐसी बछिया को पाने में कामयाब हो गए हैं जिस पर सुर्ख रंग के अलावा एक भी बाल दूसरे रंग का नहीं है। मोहतरम सामीन, यहूदियों का अकीदा है जब तक हैकल सुलेमानी की तामीर नहीं होती इस वक्त तक इनके मसीहा तशरीफ़ नहीं लाएंगे। इसकी तामीर के लिए हर चीज़ तैयार है। सहूनी रब्बी कहते हैं इस वक्त यहूदी हालत नापाकी में है। इस वक्त तक हैकल सुलेमानी के अहाते में जाने की इजाज़त नहीं जब तक पाक नहीं होते। अब सवाल ये पैदा होता है इनको पाक कैसे किया जाएगा। यहूदियों का मानना है तब तक पाक नहीं किया जा सकता जब तक बछिया की कुर्बानी ना पेश की जाएगी, और उस सुर्ख बछिया का पिछले 2000 सालों से यहूदी इंतज़ार कर रहे हैं। ये बछिया इन तमाम शराइत पर पूरी उतरनी चाहिए जो यहूदी मजहबी कुतुब में मौजूद हैं, यानी ये बेऐब हो, मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो, एक भी बाल दूसरे रंग का ना हो, हत्ता कि इस पर कोई तिल भी ना हो। इसलिए इस सुर्ख बच्चे की तलाश पूरी दुनिया में जारी थी। प्यारे दोस्तों, इसराइल में थर्ड टेम्पल की तामीर के लिए बाकायदा एक अदारा काम कर रहा है जिसका नाम दी टेम्पल इंस्टीट्यूट है। इसमें हर तरह के माहिरीन हैं। इनको पता चला कि टेक्सास के फार्म में एक सुर्ख रंग की गाय मौजूद है जो इनकी शराइत के तकरीबन करीब है।
इस नस्ल का नाम रेड एग्नेस है। वो वहाँ पहुँचे और रेड एग्नेस के एग्स हासिल किए और इसराइल के एक फार्म में बजरिया टेस्ट ट्यूब बेऐब सुरख बच्चे की अफजाइश की कोशिशें शुरू कर दी गईं। कुछ अरसा कबल माहिरीन वो बच्चा हासिल करने में कामयाब हो गए जो मुकम्मल तौर पर सुर्ख रंग का था, मगर सेहूनियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया जब इनको पता चला वो मादा नहीं बल्कि नर है। मजहबी एतबार से मादा दरकार है, नर नहीं। इसके बाद दोबारा कोशिशें शुरू कर दी गईं और दी टेम्पल इंस्टीट्यूट ने एक सुर्ख रंग की बच्चिया हासिल कर ली और अगर ये मतलूबा शराइत के मुताबिक रही तो इसकी कुर्बानी 2 साल की उम्र में मुजव्वज़ा हैकल सुलेमानी के दरवाजे के बाहर की जाएगी। इसको खाल, गोश्त, खून और गोबर समेत खुशबूदार लकड़ियों में जलाया जाएगा और इसकी राख को मतलूबा शराइत वाले पानी में मिलाकर छिड़का जाएगा ताकि हैकल सुलेमानी के तमाम इलाकों में जा सके और हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू हो सके। मोहतरम सामीन, हैकल सुलेमानी को यहूदी ठीक उसी जगह तामीर करना चाहते हैं जहां मस्जिद अक्सा और कुब्तुल सुखारा है, यानी हैकल सुलेमानी की तामीर का मतलब मस्जिद अक्सा की शहादत है और इसका आगाज़ सुरख बच्चिया की कुर्बानी से होगा। मोहतरम सामीन, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मा अंज़लल्लाहु दाइन इल्ला अंज़लल्लाहु शिफान। अल्लाह ताला ने ऐसी कोई बीमारी नहीं बनाई जिसका इलाज भी ना उतारा हो। जैसे माँ की छातियों में बच्चे की विलादत से पहले दूध आ जाता है, इसकी ग़िज़ा का बंदोबस्त हो जाता है, इसी तरह प्यारे दोस्तों इसराइल जैसा फितना उठने वाला था, इसकी सरकोबी के लिए अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को वजूद में लाया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया और ठीक 9 महीने बाद 13 मई 1948 को इसराइल आलम में वजूद में आया। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही वाहिद इस्लामिक मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना और एटमी पावर भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 लश्कर ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग से छुटकारे का परवाना दे दिया। एक वो जो हिंदुस्तान पर हमला करेगा, ग़ज़वा हिंद वाला। दूसरा हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के साथ जो होगा। दुआ है अल्लाह ताला हमें क़यामत के फितनों से बचने की तौफीक दे। अल्लाह पाक मुझे और आपको, हम सब को दज्जाल के फितने से बचाए। मोहतरम सामीन, जो शख्स सूरह कहफ की तिलावत करता है अल्लाह ताला इसको दज्जाल के फितने से बचाता है। सूरह कहफ की तिलावत जुमे के दिन लाजमी करनी चाहिए। अल्लाह पाक मुझे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेकी की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।